students, today in this video we will discuss about the practical of class 11th. This is preparation of solution of non-molarity. किसी ऐसे सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करना है जिसकी मोलरिटी आपको पता है। जैसे क्लास 11th में ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो या सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो, तो कैसे किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं उसकी हम आज यहाँ पे बात करेंगे। इन क्लास 11th titration is there, and for that we need to prepare one of the solution of non-molarity. क्लास 11th में जैसे आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ m/10 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ m/10 ऑक्सैलिक एसिड, मतलब 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन आपको बनाना है और ऑक्सैलिक एसिड का जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे 250 मिलीलीटर, उसकी मोलरिटी 1/10 होना चाहिए। तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यू नीड, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू डू दैट कैलकुलेशन, आफ्टर दैट कैलकुलेशन यू कैन प्रिपेयर द सॉल्यूशन of oxalic acid having molarity 1/10 and volume will be 250 milliliter. So let us first calculate the amount of oxalic acid needed to prepare the solution. Dear students, in order to calculate the mass of oxalic acid needed to prepare the molarity 1/10 and volume 250 milliliter, first of all we should know the formula of molarity. The formula of molarity is equal to mass of the substance divided by molar mass of the compound. जो भी compound ले रहे हैं, जिसका भी आप solution बना रहे हैं, उसका molar mass into 1000 multiplied 1000 divided by volume of the solution. जितना सॉल्यूशन आपको बनाना है, फॉर एन एग्जाम्पल वी वांट टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन एज 250 मिलीलीटर, वी हैव टू टेक 250 मिलीलीटर हियर. इफ वी वांट टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन फॉर 100 मिलीलीटर ओनली, वी हैव टू राइट 100 मिलीलीटर हियर. सी मोलरिटी वी हैव टू प्रिपेयर ऑफ 1/10, दैट वी हैव रिटन. मास ऑफ द सब्सटेंस वी हैव टू कैलकुलेट, सो आई हैव रिटन हियर इट इज WB. बट इफ you want to go for the calculation of molar mass of oxalic acid, it comes as 126 grams per mole. Molar mass of oxalic acid is 126 grams per mole into 1000, constant is there, divided by volume of the solution. As in the aim it is given, we have to prepare 250 milliliter solution, so volume of the solution I am taking 250 milliliter. And on doing calculation, WB comes as 126 into 250 milliliter divided by 10 into 1000. If we go for the calculation, the mass of substance will comes as 3.15 gram. Means we have to take this 3.15 gram oxalic acid. We have to take this 3.15 gram oxalic acid and that is to be dissolved to make 250 milliliter solution. जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की मोलरिटी m/10 आएगी. The solution will be having a molarity of 1/10. So this is about the calculation. Now we will see how we can prepare the solution. Student, we have calculated the amount needed for preparation of m/10 oxalic acid and that comes as 3.15 gram. So let us prepare the solution. अब solution prepare करने के लिए we need some instrument. First of all we need a standard flask, measuring flask. इसमें यहाँ आप देखेंगे इट इज रिटन 250 मिलीलीटर. 250 मिलीलीटर दिस फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 250 मिलीलीटर. अब इसको कहाँ तक फिल करेंगे तो 250 मिलीलीटर हो जाएगा. सी हियर, हियर ए कट मार्क इज गिवन हियर, जहाँ मेरा फिंगर है वहाँ पे एक कट मार्क दिया हुआ है. If you fill this
standard flask up to this cut mark, this will be having 250 milliliter volume there. Second thing, you need this funnel. इस फनल का यूज करेंगे जिससे सॉल्ट को इसके अंदर डालेंगे. नंबर थर्ड थिंग, वी नीड वॉश बॉटल विच इज हैविंग डिस्टिल्ड वाटर इन इट. एंड नंबर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज वॉच ग्लास हैविंग सम सॉल्ट देयर. सॉल्ट मैंने वेइंग करके लिया हुआ है. द सॉल्ट इज 3.15 ग्राम. नाउ सी हाउ आई एम प्रिपेयरिंग दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, I have taken the measuring flask here, and at that measuring flask I have given one funnel there. funnel को यहाँ लगा दिया और इस funnel के ऊपर में मैं यहाँ पे salt को add कर रहा हूँ. I have added salt there. Okay dear students, salt add करने के बाद वॉश बॉटल से उस सॉल्ट को हम धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे. ये सॉल्ट पूरा इस फनल के हेल्प से that will go inside the standard flask. ये यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्ट इस मेजरिंग फ्लास्क, इस स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर जा चुका है. Once again we will wash the funnel with the help of this water. Clear? If some salt is left there in the standard flask, मान लीजिए आपकी जो वॉच ग्लास है उस वॉच ग्लास में, डियर स्टूडेंट, वी कैन वॉश द वॉच ग्लास हियर एज वेल. वॉश ग्लास को भी हमने ऐड कर लिया फनल के ऊपर से और इस फनल को भी हमने इस वे में वॉश कर लिया विद द हेल्प ऑफ वाटर. एंड आफ्टर दैट वी हैव रिमूव्ड दिस फनल फ्रॉम हियर. अब जो वाटर है इसके अंदर में 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज देयर. सो वी विल शेक दिस. We will rotate this solution in clockwise or anti-clockwise direction to dissolve the salt in the given water. इस salt में, इस water में इस solution को prepare करने के लिए we are shaking the given oxalic acid salt here. See, some amount of salt is dissolved. We will add some more water अराउंड दी वॉल्स ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लास्क, जिससे कि जो सॉल्ट आपका अनडिजॉल्व वे में रह गया है दैट कैन बी डिजॉल्व हियर. ओके, सी वंस अगेन आई हैव स्टार्टेड रोटेटिंग दिस वन. डियर फ्रेंड्स, आई विल एड सम मोर वाटर इन इट टू डिजॉल्व द सॉल्ट इन स्टैंडर्ड फ्लास्क. मैं थोड़ा और वाटर ऐड करता हूँ जिससे और सॉल्ट को डिजॉल्व किया जा सकते हैं. We can rotate, we can dissolve the salt here. इसमें मैं salt को dissolve कर रहा हूँ. I will be shaking it continuously to dissolve the salt here. So dear friends, we have added water here to dissolve the salt, and then we will starting adding this water. When all of the salt has dissolved, we will add some more water to make the solution as 250 milliliter. सॉल्यूशन को 250 मिलीलीटर बनाने के लिए आई विल बी एडिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच ग्लास इन द गिवन स्टैंडर्ड फ्लास्क. इस वे में हम इसको वाटर ऐड करते चलें. कब तक वाटर ऐड करना है? टिल वी विल गेट द लेवल ऑफ वाटर अप टू द कट मार्क गिवन ऑन द स्टैंडर्ड फ्लास्क. इस स्टैंडर्ड फ्लास्क में जहाँ कट मार्क है, जहाँ तक वो वाटर आ जाता है वहाँ तक हमको वाटर को ऐड करना है. See, I am adding water here. I am adding water on the walls of the standard flask. इस वे में I am continuously adding the water here. I am adding water here. Clear? Continuously I am adding water here. See, dear students, the level of water in the given standard flask is here, and the cut mark is given here. So this cut mark should be in front of your eyes. वो आपकी eyes के सामने होना चाहिए जिससे कि लेवल ज़्यादा ना हो. Just add the water there. Just add the water there along the walls of the standard flask so that no bubbles will be there in the solution. Okay, I am adding here. I am adding here, and after addition of this one, see. Okay, the level of water is up to the cut mark here.
इसमें कट मार्क जहाँ है उस कट मार्क तक वाटर फिल कर दिया है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर बन चुका है एंड ऑक्सैलिक एसिड इज देयर, सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हैविंग अ मोलरिटी 1/10. So in this video we have seen how to prepare m/20 या any molarity. ये तो m/20 का हमने प्रिपेयर किया है, बट यू कैन प्रिपेयर द सॉल्यूशन फॉर एनी मोलरिटी फॉर एनी वॉल्यूम। केवल आपको मोलरिटी के फार्मूले में मोलरिटी चेंज करना होगी एंड वॉल्यूम वी हैव टू चेंज। अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना चाहता हूं तो आई नो आई शुड हैव दिस इज मोलरिटी, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस एंड व्हाट वॉल्यूम आई हैव टू प्रिपेयर। जैसे फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हैविंग अ मोलरिटी 1/10। तो मोलरिटी 1/10 बनाना है, वॉल्यूम 250 मिलीलीटर बनाना है, ऑक्सैलिक एसिड मुझे यूज करना है। तो मैं पहले उसका अमाउंट कैलकुलेट किया कि कितना अमाउंट मुझे डिसॉल्व करना होगा एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव सीन दैट 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मस्ट बी एडेड टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन. So this solution is having a molarity 1/10 and having a volume 250 milliliter. So thank you.